चलिए। Respected Director Sir, Principal Ma'am, STNC Sir, Manager Sir, and all colleagues. Today we have completed first session successfully. So after completing the first session, we are going to start second phase of this training. We already discussed in first phase what is competency building and what is multimedia. The real concept of competency building and real concept on multimedia we have already discussed in the first phase. Now in the second phase we are going to discuss in more details. So listen carefully, and to start second phase I would like to call STNC Roshan sir. Please come and continue the second phase. Come, Roshan sir. So, once again, good morning, all of you. I, Kumar Roshan, STNC, Mother Teresa High School School, invites each and every one of you to the second session of the topic competency-based building programs in multimedia. So, as we all know that this program has taught us a lot more things, and this is the program of current generation and modern generation also. So this multimedia things not only enhances the people's learning skills, but it also helps us to modernize our further life skills also. So those are the things which could be understood and undermined according to the things, according to the work and according to the prescribed things. So as we all have seen, I have already said that our scientists are researching a lot about multimedia skills. So next, what we are looking is hypermedia and multimedia. Okay, so what is hypermedia and multimedia? A hypermedia text means to be read non-linearly by following links that point to other parts of the document or to other documents. Next one was hypermedia not constrained to be good, to be text-based, can include other media, graphics, images, and especially the continuous media, sound and video. The World Wide Web, the best example of the hypermedia application. Multimedia means that computer information can be represented through audio, graphic, image, video, and animation in addition to traditional media. Examples of typical present multimedia applications include digital video editings, production systems, electronic newspaper, magazines, etc. World Wide Web, online reference work, example encyclopedia, games, etc. Home shopping, interactive TV, multimedia courses, and many other things. Okay, so these all things will help us to gain us a lot. So for this, now as we have discussed a lot many things, now I would like to call one of my colleagues to come and express some views about multimedia and show what he has gained or what till here his experience is about multimedia. So I would like to call
Now today's topic is multimedia. The various we have to know various concepts related to the multimedia. In present world, nothing is in competition with the multimedia world. Even from childhood, we are targeting various resources, and those resources are get from different sources which are unknown to us. But yet, we are fulfilling our desires for various means which incorporate with the various section of the media, which is jointly called as multimedia. Multimedia has different sections, and in the past decades, there was a growing concern about how the recent development in the scientific world will help in the multimedia to gain our resource development in kind of human resource. So multimedia gives us various opportunities like to gain over various different research and other things which are going on in the world, even far from our country. We can also use it for entertainment purpose, and nowadays most of the media channel, apart from the TV channels and newspapers, are basically gaining their information from multimedia sources. Like whatever is happening in the world in the present scenario, we are getting from social media sites, from TV live broadcasting, or various other means. But they all compromise of a single fact that it is a multimedia. Multimedia doesn't means only the facts. It is a good representation of facts with images, with videos, and all those things which are required for the getting clear understanding, a clear view of what is happening and what it has to do with us. Is what is has to give us benefits, what it has to clear our doubts. So in present scenario, even a small child, even from a kid, we are about to learn more about multimedia, though we are not getting about it in a deep sense, but we are always using it. In some sense or other, we are using multimedia for different purposes. And as a teacher, I am also using multimedia. I always try to convey the students to get some detailed information about any topics which is not related even the books or the present syllabus, but they can get further information about that topic so that they can help them in later on life. Like a student who is going in science field, so if he has to go into deep research, he want to know much more things about that. Apart from the syllabus and the studies, which is given to all as a general, he can take his part, give some time on the multimedia issues. And multimedia has various concerns in the project world. Like there are also some disinformation. Disinformation is supplied by various sources, but we have to just cut them down from the real source. So multimedia doesn't only gives us the opportunity to get all kinds of information, it also gives us the chance to put our views over all the world in various kinds of forms. Like in present scenario, all the news which are happening in the world are comprised of videos, and those lectures which are ongoing with those videos. And those people are always trying to convey what is happening. But we are as a single person, we can't have the reach to every source in the world. We can't have the reach to different sources of the world. So multimedia is here, acting as a vital source for supplying us the information about different topics. In present world, we can't even imagine about living without multimedia. It was the old days when we were just depending on the newspapers, televisions, and those also comprised only about information. But today what we can get from the information by our own ways, by at the time we need prescribed, by the way we want, that the source which we believe ourselves to be authentic. Now it seems that various sources can be authentic, but what we believe ourselves to be authentic, having that source, we can get through information from that source by multimedia. So even today the students have different source to get from multimedia. They can prescribe to other students also. There are friends, a group circle. Nowadays, even after Corona times, multimedia has been a vital importance. All the kind of studies are now present on the various channels, which can also conclude on the conclude, not on or really conclude, but which gives a pathway to reaching to those real videos and those real news information which are not available in our country also, like from Cambridge University and different kind of universities, which is really not.
newspapers. We are getting them from different sources. Some sources are banned from other countries, some sources are banned from some other group of countries. But to get our view, what is really correct and what is really not correct, and what is important for us to know at a period time, multimedia is going up a vast difference in the case that they divert the useless information from that particular kind of information which is important for us to know. So multimedia cannot be defined in a single phrase or term, but it has just its essence can be felt in every scene, every way, everywhere we are present. Nowadays people can't live without multimedia. So multimedia has various prospects. Whatever information is provided from authentic source, comprising of various fields which are related to science, information, politics, geopolitics, and even civical system, and what examinations are going on. All those kinds of information is now supplied to every small child living in the village or a small town. He has the way to go forward in this scenario in every way. He is not defined by, he is not restricted or defined by the way of thinking or the way of thinking has ability to get the information. Every person living in a rural area is very far from the town area. He has also access to every kind of information because of this multimedia only. So we have very deep gratitude to all the people which are included in the multimedia, which are helping the world to move forward. And the multimedia is not only a particular term which can be said to be even a particular phase of one country. Every country has its own contribution towards multimedia. Mainly the Western world, we think that Western world must have a deep essence in getting all those new researches and all those new changes which is done with multimedia. Like US and Europe, they are trying to observe and control all the information about Ukraine and Russia war, which is not in the favor of Ukraine but in the favor of Russia. They are trying to portray Russia as the leader. So in this case also, for example, in this case also, if we have to get a real picture of what is happening in this real world, we have to get from different sources which are authentic and which are showing us the real videos, real time, on the real time, all the detailed descriptions. So these can be only possible with the multimedia. Thanks to all the people we are giving their time and their brain in running all the kinds of various sorts of multimedia platforms. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you, Google, sir, once again for whatever information you have shared with us. So, multimedia things are not only built to be shaped according to the task, but it also enhances much dignity. Multimedia improves the skills, what we learn from the things. And multimedia tells us, or it just improves the educational quality, the things what you will gain from this, and what things are achieved by us. And as we all have seen that multimedia classrooms are now being introduced in all the schools also, in many of the things. Most of the teachers are using multimedia to teach their students, and in detail we have seen the use of multimedia, and we already know the use of those multimedia, but there is always a negative and positive impact of each and everything. And according to that also, multimedia also have some impacts. So those impacts could be easily learned or could easily be generated according to the viewpoint how we implement those things. And as we all know that the Digital India program has also been launched by our Prime Minister, who is also enhancing or enabling the people to further enhance the multimedia
वाले जो क्षेत्र में जो पढ़ाई की चीजें हैं, इनके आ जाने से आज शिक्षा का बहुत बड़ा विस्तार हो चुका है। ठीक है, आज शिक्षा जो है वो बहुत हद तक बहुत दूर दूर तक फैल रही है। और शिक्षा क्या कर रही है, वो आज बच्चों को पढ़ने लिखने पढ़ाने का जो माध्यम है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ठीक है, और जो माध्यम है वो बढ़ता जा रहा है। और क्या हो रहा है कि बच्चे जो है वो और ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ाई के प्रति अग्रसर हो रहा है। ठीक है, आपका और ज्यादा आगे बढ़ रहा है और अब पढ़ाई जो है वो उनके लिए ज्यादा सरल होता है, यानी इट इज बिकमिंग इजी। क्योंकि एक्चुअली आज के जमाने में प्रेशर, स्ट्रेस और भाग दौड़ को देखते हुए वी आर जस्ट ट्राइंग टू improve the quality of education, and multimedia has one of the basic role in those things. So further, taking to the topic, I would like to call first Arun sir to come and show what his views are according to the media and impeach what he thinks media could attract, and hopefully you will also get to learn according to his understanding. So आइए अरुण सर को बुलाते हैं और देखते हैं कि उनकी समझ से क्या मल्टीमीडिया है और फिर आप लोग सबको उनके व्यू से भी मल्टीमीडिया को समझने में आसानी होगी। ठीक है, सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू कॉल अरुण सर। अरुण सर कम। धन्यवाद कुमार रोशन सर, हमारे विद्यालय के एचडीएफसी। आज की जो महत्वपूर्ण जो विषय है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया है क्या? मल्टीमीडिया मुख्यतः दो शब्दों से मिलकर बना है, मल्टी प्लस मीडिया। मल्टी का मतलब होता है कई प्रकार और मीडिया का मतलब होता है सूचना। कई प्रकार की सूचनाओं को एकत्र करना ही मल्टीमीडिया कहलाता है। आज के समय में जैसा कि आप जानते होंगे, आज के दैनिक में कई प्रकार के संसाधनों का उपयोग किया जाता है मनुष्य के जीवन को सरल तथा सुलभ बनाने के लिए, जिसमें हम लोग बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग करते हैं, जैसे व्हाट्सएप है, जैसे फेसबुक है, जैसे मैसेंजर है, और इन सभी को हमारे जीवन में नितांत जरूरी है। जैसा कि आप जानते होंगे कि इन सभी चीजों के बगैर आज की स्थिति में किसी भी कार्य को संपादित करना वह सर्वोत्तम रूप न रह गया जो पहले हुआ करता था। जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारा जीवन बहुत ही फास्ट जीवन है, यानी करीब बहुत ही तेज जीवन के चक्र में हम लोग चल रहे हैं। और इन सभी में जिस प्रकार के हम लोग एक शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, तो शिक्षा जगत में आज की आधुनिक संसाधन का उपयोग नितांत जरूरी है। यह हम लोग भी देखते हैं, जैसे क्या एक पाठ्य पुस्तक जो हमारे विद्यालय में चलता है उसमें भी स्कैनर सिस्टम होता है। यदि उस स्कैनर सिस्टम को स्कैन कर दिया जाए तो उस पाठ्यक्रम को शाब्दिक अर्थ या पाठ्यक्रम के सभी भाव को बच्चों के सामने प्रस्तुत करना एकदम आसान हो जाएगा। होता क्या है कि मल्टीमीडिया के कई स्वरूप होते हैं, जिसमें आप ध्यान देंगे कि वीडियो हुआ, टेक्स्ट हुआ, इमेजिंग हो गया, फोटो इमेजिंग हो गया। इन सभी स्वरूपों को अंतर्निहित करते हुए यदि आप शिक्षा जगत के सभी भावों को रखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण है वह मुकाम को आप हासिल कर लेंगे जिसका हर लोग कामना करते हैं। मल्टीमीडिया का महत्व हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि अब समाज वह सब कुछ है जो समय के साथ चलता है। आप जैसे देखते होंगे मल्टीमीडिया का महत्व व्यवसाय के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में मल्टीमीडिया का महत्व यह है कि आज छोटा से छोटा वस्तु हो या बड़ा से बड़ा वस्तु हो, सभी में मल्टीमीडिया का एक कोडिंग होता है जिसके तहत आप उसकी गुणवत्ता और उसकी प्रखरता को जांच कर सकते हैं। तो यह बहुत बड़ी बात होती है कि मल्टीमीडिया व्यवसाय में क्या महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। दूसरी बात है कि कौन सा चीज कौन सा चीज का रेट क्या चल रहा है, यह भी बहुत बड़ा भूमिका अदा करता है आपके मल्टीमीडिया के माध्यम से। मल्टीमीडिया के माध्यम से आप
आपको मालूम होगा बहुत सारी ऐसी वस्तु है या घर के बहुत सारे आइटम्स है जिसको आप व्हाट्सएप या फेसबुक या अगर के माध्यम से आप उसकी परचेज कर सकते हैं या उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। तो यह मल्टीमीडिया का बहुत ही बड़ा मुख्य भूमिका है, जो कि क्या किया कि घर को घर से जोड़ दिया, घर को बाजार से जोड़ दिया और हर लोग के वस्तु स्थिति को लाया। अब है सार्वजनिक क्षेत्र में मल्टीमीडिया का बहुत बड़ा महत्व है। मल्टीमीडिया के माध्यम से आप किसी भी चीज को प्रेषित कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं मास मीडिया क्या है? मास मीडिया कैसे मीडिया? मास मीडिया कहते हैं कि किसी भी सूचना को बहुत सारे लोगों में प्रेषित करना ही मास मीडिया कहलाता है। आप जैसे कि जानते होंगे कि बहुत सारे ऐसे घटना घटित होता है जिसको आप पूरे समाज, पूरे लोगों के बीच में प्रेषित करना चाहते हैं, तो मास मीडिया के माध्यम से आप उस चीजों को लोगों के सामने प्रेषित करते हैं और हर व्यक्ति अपनी उस विषय वस्तु के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू मास मीडिया के माध्यम से रखता है। जैसे कि आप जानते होंगे न्यूज पेपर में हर व्यक्ति अपने वक्तव्य या अपने भाव को रखने का प्रयास करता है और ऐसा नहीं, हर व्यक्ति का अलग अलग भाव होता है, हर व्यक्ति का अलग अलग सोच होता है और अपनी सोच को रखते हैं। जैसा हमारा संविधान करता है कि हर व्यक्ति को अपना विचार रखने का अधिकार है। तो मास मीडिया के माध्यम से हम अपने विचारों को सभी के सामने रख सकते हैं और अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रेषित भी कर सकते हैं। यह मास मीडिया का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। अब है मल्टीमीडिया घटक। मल्टीमीडिया का घटक जो होता है वह टेक्स्ट है, ऑडियो है, वीडियो है, इमेजिंग, ग्राफिक है, एनिमेशन है। टेक्स्ट में क्या होता है कि मान लिया किसी भी वस्तु स्थिति है उसके बारे में सही जानकारी टेक्स्ट के द्वारा अंकित होता है। आप किसी भी वस्तु के बारे में लिखा हुआ सारा खबर जो है वह प्रिंटेड आपके पास आता है और उससे आप सही गलत जानकारी टेक्स्ट के माध्यम से प्राप्त करते हैं। ऑडियो सिस्टम हुआ है जो किसी भी विषय वस्तु के बारे में आपको एकदम श्रवण योग्य जो चीज है वह आपके पास पहुंचता है और उसके माध्यम से आप उस विषय वस्तु की जानकारी आप प्राप्त करते हैं। वीडियो के माध्यम से उस विषय वस्तु के बारे में आप उसकी सही स्वरूप को जानते हैं, सही स्वरूप को लेते हैं और सही स्वरूप को जानने के पश्चात उस चीज को आप अपने अंदर में लाने का प्रयास करते हैं या उसको यदि आपकी उपयुक्त नहीं है तो आप उसे रिजेक्ट भी करते हैं। या वीडियो के माध्यम इमेज ग्राफिक्स होता है कि किसी भी इमेज को सही ढंग से सही रूप में स्थापित करना या लाना इमेज ग्राफिक में आता है। जैसा कि आप जानते हो कि इन सभी चीजों के साथ धीरे धीरे जो है वह अब मल्टीमीडिया का महत्व जो है बढ़ते जा रहा है। मल्टीमीडिया में जो मुख्य जो प्रकार है वह है हाइपर रिजोल्यूशन फोटोग्राफी, टेक्स्ट, इन्फोग्राफिक, ग्राफिक, वीडियो, आर्ट, ऑडियो और एनिमेशन। अब आता है उपयोग। मल्टीमीडिया का क्या उपयोग? मल्टीमीडिया का उपयोग एजुकेशन में है। मैंने पहले बताया कि एजुकेशन में यदि किसी विषय वस्तु को आप किसी बच्चों के सामने प्रेषित करना चाहते हैं, आप जैसे हमारे विद्यालय में जो चलता है उसमें मैंने पहले बताया कि स्कैनर सिस्टम होता है। उस स्कैनर सिस्टम के माध्यम से विद्यार्थी यदि स्कैन करने प्रत्येक चीज को स्कैन करने तो उसको सही ढंग से अपने मोबाइल पर या अपने घर में देख सकता है कि क्या क्या हो सकता है। इसका एंटरटेनमेंट हो गया, कम्युनिकेशन सेक्टर में इसके बाद आता है। इसके बाद जो है जो मुख्यतः मल्टीमीडिया जो है हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन घटनाओं घटक पर आगे अपने वक्तव्य रखने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे विद्यालय के आदरणीय दीपक सर आए और अपने वक्तव्य को रखें। दीपक सर प्लीज। First of all, good morning to all of you. Myself Deepak Kumar, faculty of Mother Teresa 10th English School. First of all, I would like to thank Kumar Roshan sir that he given me the opportunity to tell something about the competency-based program on multimedia. Competency-based education, that short form is CBE, has initiated a strong
stakeholders due to its potential to meet a student where they are in their educational journey and provide a more personalized path to completion. A typical competency-based education program has a curriculum structure to demonstrate learning in clearly articulated competencies is is agnostic as to the source of learning while maintaining clear and transparent learning standard, and has an emphasis on authentic assessment which evaluate what the learner knows and can do through real life demonstration and projects. Unfortunately, the model's practical benefits are tempered by the significant technologies, challenges and barriers to competency-based education program adaptation and roadblocks due to limits in higher education software products. As a community, the product used to manage our institutions and their teaching and learning processes are all deeply rooted in a credit hour-based, term-based and course-based education delivery model. Competency-based education is not a new idea, but it promises a potential solution to critical issue in higher education. Like that, normally मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करते हैं. पहले के समय में स्टूडेंट जितना कुछ स्टडी नहीं कर पाते थे, आज के समय में वो फ्री में बहुत सारे कुछ स्टडी कर पाते हैं. और मल्टीमीडिया के आने से जो एजुकेशन सिस्टम में सुधार आया है, जो एजुकेशन सिस्टम में डेवलपमेंट आया है, इसके आने से स्टूडेंट लोग जितना सीखना स्टार्ट किया है बाय द हेल्प ऑफ 3D एनिमेशन, बाय द हेल्प ऑफ वीडियोस, दे ऑल लर्न वेरी मच थिंग. लाइक यूट्यूब से आज के बच्चे बहुत सारी चीज़ों का तैयारी कर सकते हैं, वहाँ पर ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेके आसानी से पढ़ के और बड़े से बड़े एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं, लाइक UPSC, IIT, SSC, NTA एंड मेनी मोर एग्जाम्स. सो पहले के समय में जो ऑफलाइन स्टडी सिर्फ एक हुआ करता था, जो स्टूडेंट सिर्फ डिपेंडेंट होते थे ओनली ऑफलाइन स्टडी पे, मल्टीमीडिया के आने से स्टूडेंट का डिपेंडेंसी खत्म हुआ और वो कहीं ना कहीं अपने आप को इस काबिल बनाने लगे कि अगर टीचर्स अगर वो ऑफलाइन स्टडी ना भी करते हैं तो हमारे ऑनलाइन यूट्यूब पर इतने सारे फैकल्टीज मौजूद है, इतने सारे हायर एजुकेटेड फैकल्टीज मौजूद है जो बच्चों को बहुत कम पैसे में बहुत सारी चीज़ों को सिखाते हैं. अभी मैं दो इंसान का नाम लेना चाहूँगा. सबसे पहले हम बात करते हैं तो दुनिया में सबसे बड़ा एजुकेशन जो खान सरकार है, जो सबसे कम पैसा में स्टूडेंट को रेलवे, बैंकिंग, SSC और BPSC इन सारी चीज़ों का तैयारी करवाते हैं. और दूसरे हमारे यंग जनरेशन के हीरो उनको कंसिडर दैट अलग पांडे सर, जिन्होंने फिजिक्स की दुनिया में आग लगा कर रख दिया यूट्यूब से. तो ये दो ऐसे इंसान हैं जिन्होंने स्टडी को, ऑनलाइन स्टडी से बच्चों को इतना कामयाब किया. इन सबसे पढ़ के बच्चे लोग SP बने, DSP बने, बहुत सारे बच्चे IIT निकाले, मेडिकल क्रैक किए. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और मल्टीमीडिया जो हमारा है, वो मल्टीमीडिया का हमारे आना हमारे स्टूडेंट के लाइफ में आने कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत बड़ा बात है. और मल्टीमीडिया का आना स्टूडेंट के लिए दो फायदा है. एक, उनको हायर एजुकेशन बहुत अच्छे फैकल्टी से मिल पा रहा है, और दूसरा बहुत कम पैसे में स्टडी करके वो अपने लाइफ में सक्सेस अचीव कर पा रहे हैं. नहीं तो अगर हम बात करें ऑफलाइन स्टडीज़ का तो कोचिंग का चार्जेज इतना ज़्यादा होता है. और अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन स्टडी का, उस समय उस टाइम में कोचिंग का चार्जेस बहुत कम होता है. तो मल्टीमीडिया के हेल्प से बच्चे लोग, गरीब बच्चे लोग भी इजीली सब्सक्रिप्शन ले पाते हैं और अपने लाइफ को सक्सेस बना पाते हैं चीज़ों को स्टडी करके. सो आई वुड लाइक टू थैंक रोशन सर दैट ही called me and I say many more things about the multimedia. So please Roshan sir come. Thank you Arun sir, thank you Deepak sir for whatever you do sir. आपका जो भी व्यूज रहा वो एक बहुत हद तक सिखाने वाला है. आपके व्यूज से हो सकता है बहुत लोगों का मन जो है वो बहुत हद तक प्रभावित हुआ हो, तो उम्मीद करता हूँ. और एज वी ऑल आर सीइंग मल्टीमीडिया का कितना बड़ा रोल है हमारे एजुकेशन सिस्टम में.
शेयर के सहारे जा रही थी। कभी हाल में मैंने मीडिया में एक रिपोर्ट देखी, एक न्यूज़ देखा, जहां पर मैंने देखा कि एक ओल्ड लेडी, एक बुजुर्ग महिला जो है वो अपने पेंशन को लेने के लिए चेयर के सहारे नंगे पैर जो है वो बैंक जा रही थी। तो आप सोच सकते हो कि एक एज के बाद, एक समय के बाद हर किसी को सहारे की जरूरत होती है। हर इंसान जो है वो उसके लिए समय जो है वो एक साथ ही रहता है। समय के हिसाब से आपको अपने शरीर को, अपने वक्त को, अपने आपके हालात जो बदलते हैं। तो निर्मला सीतारमण ने इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए, ठीक है, यानी इन चीजों के ऊपर ध्यान देते हुए गवर्नमेंट भी बहुत एक्टिव हो चुकी है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने निर्मला सीतारमण तुरंत उसके लिए एक्शन लिया और गवर्नमेंट को, एसबीआई को डायरेक्ट रिकमेंडेशन किया कि उसके लिए बैंक जो है या जो बैंक कर्मी है उसके घर पे एक्ट करे, उनके लिए काम करे, या मीडिया के थ्रू तो बैंक कैसे काम करेगी। तो बेसिकली क्या है, डिजिटल मीडिया के माध्यम से, फोन के माध्यम से, इसके माध्यम से पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, उसके पास पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब बहुत सारी सुविधाएं हैं जहां अब इंसान को एट अ पॉइंट हर जगह पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उस जगह पे, उस समय पे आपको ये मीडिया या मल्टीमीडिया जो है वो पहुंचा रही है। यानी सोचिए मल्टीमीडिया हमारी लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है, ठीक है। ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कितना बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका यूजेस, ठीक है। इसके जो व्यूज हैं, इसके जो क्षेत्र हैं, ये कहां तक हमको लेके जा रहे हैं। तो बेसिक्स तो मैंने आपको बताया मल्टीमीडिया का है, लेकिन अगर बात किया जाए तो मल्टीमीडिया को अगर हम जानने के लिए उतरेंगे तो मल्टीमीडिया एक कह सकते हो कि इट इज समथिंग लाइक अ सी, ये अथाह समुद्र की भांति है। इसको समझना, इसको जानना बहुत कठिन है, क्योंकि इसके जो फॉर्म्स हैं, इसके जो स्टेप्स हैं और जो भी चीजें इनमें आती हैं वो इतनी ज्यादा है कि जिनको अकेले हम पढ़ नहीं सकते, अकेले हम उसको देख नहीं सकते। तो अकेले आप किसी भी चीज को, या कह सकते हो कि एक लिमिटेड टाइम में या लिमिटेड समय में इस टॉपिक को कंप्लीट नहीं किया सकता। फिर भी हमने कोशिश की है कि अपने शिक्षकों को, अपने स्टाफ मेंबर्स को, खास करके हमारे मैनेजर से बैठे हुए, और आप देख रहे हैं कि वो भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। तो सबको जो है कुछ ना कुछ सीखने के लिए, जानने के लिए मिल रहा है, ठीक है। और हम लोग देख रहे हैं कि हमारे ऑफिस में भी अब सब कुछ धीरे-धीरे डिजिटलाइज होते जा रहा है, ठीक है। जो चीजें हमारे ऑफिस में आज के पहले की डेट में, आज से बहुत साल पहले हमारे ऑफिस में जो बहुत सारी चीजें जो थी, जो रजिस्टर में हुआ करती थी, अब मेंटेन होती थी, आज मेरे पास रजिस्टर सिर्फ नाम रह गया है, सारा चीज ऑनलाइन अवेलेबल है। आप हमारे स्कूल का वेबसाइट चेक करके हमारे स्कूल के इन्फॉर्मेशन के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब आपको एनहांस करती हैं हमारे स्कूल के बारे में, हमारे लाइफ के बारे में, हमारी चीजों के बारे में। तो समय के साथ सब कुछ बदल रहा है, तो मल्टीमीडिया का रोल हर जगह प्ले देखने को मिल रहा है, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारे कल्चरल लाइफ में, हमारे पर्सनल लाइफ में, ठीक है। वी आर एक्सप्लोरिंग द सोशल साइट्स आल्सो, सो डोंट फॉरगेट, ठीक है। तो भूलिए नहीं कि हम लोग सोशल साइट्स में भी मल्टीमीडिया का बहुत सारा इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको अपने लाइफ में हम एनहांस कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। तो सोच सकते हैं हम कि मल्टीमीडिया कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है, कितना आगे तक हम इन सब चीजों को लेकर के जा रहे हैं। और इन सब चीजों के बारे में बहुत कुछ हम जान रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा दो लाइन मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा सभी ने अपना व्यू दिया है, अब बाकी जो एक दो अच्छे लोग बैठे, जो अच्छा स्पीकर है, खास करके सर धर्मेंद्र सर, ठीक है, मैं चाहता हूं कि वो भी अपने कुछ व्यूज को हमारे सामने रखें, ताकि एटलीस्ट हम उनका व्यूज भी जान पाए कि उनका क्या व्यू है मल्टीमीडिया को लेकर के, और क्या इंफॉर्मेशन का सिस्टम है मल्टीमीडिया पे। सर मल्टीमीडिया के अंतर्गत रोशन कुमार सर जो भी चर्चा की है उससे मैं भली बात ही बहुत अच्छे से अवगत हुआ, और इसके संबंध में कुछ विशेष बातें मैं बताना चाहूँगा कि मल्टीमीडिया के अंतर्गत योग्यता पर आधारित शिक्षा के अंतर्गत अनेक दृष्टिकोण की मुख्य विशेषताएं भी होती हैं। इसमें पहला पॉइंट है, सभी छात्रों के लिए समानता होना अति आवश्यक है। सीबीएसई के अंतर्गत इनके दृष्टिकोण से इनके उद्देश्य विशेष दक्षताओं की
के दर्शाने पर या केंद्रित करके सभी छात्रों को उनकी पृष्ठभूमि या पूर्व ज्ञान की परिपक्वता पर बिना प्रदर्शन किए उसे अवगत कराया जाना अति आवश्यक है, ताकि सभी छात्र एक समान अपना शिक्षा हासिल करने में आगे विकास की ओर बढ़े। दूसरा है विभेद समर्थन। सीबीएसई दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रत्येक छात्र की व्यवस्था सीखने की जरूरतों के आधार पर अलग अलग समर्थन प्रदान करता है, अलग अलग व्यवस्था करता है। जिस कैटेगरी के छात्र होते हैं उसी के अंतर्गत उन्हें शिक्षा दी जाती है, जिससे उन्हें अपनी गति के काम करने में के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलती है जहाँ उन्हें सबसे अधिक सुधार की आवश्यकताएं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रवीणता के साक्ष्य के आधार पर प्रगति करना। सीबीएसई के अंतर्गत दृष्टिकोण प्रवीणता के साक्ष्य के आधार पर प्रगति पर ध्यान केंद्रित करता है, बजाय कक्षा में बिताए योग्यता में दक्षता का प्रदर्शन किया है और नई सामग्री पर जाने की अनुमति देता है। नई दिशा की ओर कैसे अवगत कर आगे विकास करें। नेक्स्ट है इसकी रचनात्मक मूल्यांकन। सीबीएसई दृष्टिकोण से छात्रों को निरंतर प्रक्रिया प्रदान करने के लिए रचनात्मक मूल्यांकन की विशेष रूप से सहकर्मी और स्वमूल्यांकन का उपयोग करता है, जिससे उन्हें अपने स्वयं के काम पर प्रतिबंधित करने और सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान करने की अनुमति देती है। तो मैं अपना विचार यहीं समाप्त करता हूँ। अब मुझे रोशन सर से आग्रह है कि अपनी उस विशेष इस पर चर्चा करें। Okay, so thank you, Dharmesh sir. Whatever you have explained about this topic, now